पापा। ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਤੂੰ? पापा डेस्क पे पई सी। ਸਕੂਲੋਂ ਖਾਧੀ? हाँ जी। ਪਿਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ। पापा प्लीज मैं बोल सकता हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक पानी पिला दो पापा प्लीज। ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ, प्लीज पापा। ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ? प्लीज चलो। पापा। ਪਿਲਾ ਦੇਣੇ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ। मैं बोल सकता प्लीज पापा पानी। पाइप भी करवा दो प्लीज। ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲਾ। मेरे प्लीज पहले पाइप करवा दो। ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। पहले करवा दो। हाँ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਬਲੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7:57 ਤੇ। ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ 10:22 ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਏ, ਸਕੂਲ ਭੱਜੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਪੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਪੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਪੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਧਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਰੰਗ ਦੀ ਖਾਕੀ ਕਲਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਗੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਸਲਫਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਕੂਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 2 ਟੀਚਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। नाम नीतू शर्मा, मैं श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ? सर कल क्लास में ऑल ऑफ सडन बच्चे को वॉमिटिंग्स आई नियर अबाउट कोई 10 बजे के आसपास, क्योंकि 9:40 पे 35-40 के आसपास हमारा सेकंड पीरियड जो ओवर हुआ वो कंप्यूटर लैब का था। मैं इसलिए टाइम के लिए इतनी कंफर्म हूँ, कंप्यूटर लैब ग्राउंड फ्लोर पे है। 9:35 पे पीरियड ओवर हुआ, उसके बाद बच्चे टॉप फ्लोर पे गए, क्योंकि जो 7th क्लास है वो 6th क्लास जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है। जब बच्चे सेकेंड फ्लोर पे गए, जाते हुए 5-7 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद टीचर, इंग्लिश की टीचर क्लास में आई, वो पढ़ा रही थी। 10 मिनट के बाद एक बच्चे को वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई। वो फटाफट वॉशरूम में ले गए, वहाँ बच्चे को पॉटी भी आई और बच्चा वहाँ अनकॉन्शियस हो गया। हमारे यहाँ प्रॉपर नर्स है ट्रेन, उसके पास फटाफट टॉप फ्लोर से नीचे लाते हुए 2-3 मिनट लगते हैं। इतने जवान बच्चे को लेके आए, नीचे आए, उसने बीपी चेक किया, कहते हैं जी बीपी बड़ा कम है, हम इसको कुछ दे नहीं सकते क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस है। बच्चे को थोड़ी सी होश आई, लेटा हुआ था, उसको
पूछा तूने कुछ खाया, कहता मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। उस नाते हम कुछ बच्चे को दे नहीं सकते थे। हमने इमीडिएटली सर पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। 10 मतलब ये सोचिए मैं आपको कि 10 बजे के आसपास ये बात हुई है, सारा चेकअप हुआ बच्चे का, पेरेंट्स को फ़ोन किया, 10-20 के आसपास पेरेंट्स आए और आगे बच्चे को ले गए। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है सर। है? कल की बात हाँ जी, ये कल सुबह की बात है। पेरेंट्स बोले कि बच्चे की एज सर, उसका हमने अभी डेट ऑफ बर्थ चेक किया है, 2011 10 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2011 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। बच्चे ने कुछ स्कूल से खाया है। सर स्कूल में कोई रिसेस नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, अभी क्लास में पीरियड चल रहा था। उसके बाद सर रिसेस के बाद हमारी एक टीचर ICSE के पेपर चेक करने के लिए गई हुई है, तो वो उसका सब्जेक्ट मैथ है, उसकी जगह पे क्लास मैं ले रही हूँ पिछले 4 दिन से 7th B में। मैं 11:20 पे रिसेस ओवर हुई, मैं अपनी क्लास लेने चली गई। 5-7 मिनट में क्लास में काम करा रही थी तो मुझे नीचे से मेरा ऑफिस स्टाफ आया, कहते मैम नीचे पेरेंट्स आए हैं, जो बच्चा बीमार रहा था, कहते डेस्क चेक करना है। मैं क्या डेस्क में चेक करना है? बच्चे में कहते हैं उसमें देखो कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, देखना है हमें। उसी फ्लोर पे मेरी क्लास थी तो मैं क्या बेटा देख लेते हैं, जाके देखा पेन का कैप था, वो बच्चे राजा वजीर चोर सिपाही कुछ खेलते होंगे, वो एक स्लिप पड़ी थी और टूटा हुआ नीचे पेन पड़ा था। मैंने कहा बेटा ये सामान है सारा, मैंने वहीं पे सामान रखा, मैं अपनी क्लास में चली गई, मुझे कुछ नहीं पता था उस समय क्या हुआ। फिर दोबारा जैसे 5 मिनट के बाद एक मेरा ऑफिस का लड़का है, वो भागा आया, कहता है मैम पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे ने सल्फास खाई। सर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं कहा ये कैसे हो गया? मैंने वहीं पर अपना मोबाइल और पेन भी वहीं पर छोड़ा, मैं फटाफट नीचे भागी आई। उन्होंने पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने कहा कि ऐसे मैम खाई। मैं कहा बेटा स्कूल में पॉसिबिलिटी नहीं है कि सल्फास आए और हम लोग इतने पर्टिकुलर हैं। तो कहते हैं हमने क्लास में जाना। मैं कहा आप सारे क्लास में नहीं जा सकते, दूसरे बच्चे भी वो डर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए जिम्मेवारी सारे बच्चों की है। तो मैं क्लास में गई, मैंने क्लास में आके बच्चों को हेलो हाय की। मैंने कहा उनके ताया जी जो साथ थे, मैं क्या उनको ले आओ, क्लास में ले जाते हैं। उनको हम क्लास में ले गई। हमने बच्चों से पूछा कि हमने पूछा अनुराग कहाँ बैठा था? बच्चों ने कहा लास्ट बेंच पे 3rd रो में बैठा हुआ था। उसके बाद उनसे पूछा पहले भी वो लास्ट बेंच पे ही बैठता था। सर एक्चुअली स्कूल शुरू हुए अभी 5-6 दिन ही हुए हैं समर ब्रेक के बाद, तो इसके नया सेशन शुरू हुए 5-6 दिन हुए हैं। बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था, उसके आसपास 2 बच्चे बैठे, उसके ताया जी भी साथ थे। तो बच्चों ने कहा हम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा उसके फ्रेंड्स कौन है? कहते हैं हम हैं। तो हमने कहा क्या? उन्होंने ताया जी की प्रेजेंस में बच्चों ने बोला, कहते क्या हुआ? तो कहते जी उसको ना सुबह थोड़ा लेट आया। तो वो कहते नहीं वो तो टाइम पे आता है। कहते बच्चों ने कहा अटेंडेंस के बाद आया। सर मैं जो बच्चों ने बयान किया, रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? आपका क्या फर्ज बनता था? बच्चे आपके भरोसे पर परिवार बेचता है। बिल्कुल सर, हमारे भरोसे पे बैठता है। सर हमारी रिस्पांसिबिलिटी जो रूल बनता है, हमने बच्चे को नर्स को दिखाया, चेकअप कराया। देखिए जब बच्चा कैमरे लगे हैं आपके? सर क्लासेस में कैमरे नहीं होते कब सर, इस तरह तो वॉशरूम में भी आप कहेंगे कैमरे चाहिए नहीं सर। बच्चा क्लासरूम्स में सब बातें बनाने वाली बातें तो आप भी बना रहे हैं। क्लासरूम्स में कॉरिडोर में कैमरा। सर देखिए किसी का बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा है, स्कूल का बच्चा है। जैसे सर अब कैसे खा ली? उनका भी तो बच्चा है जिनका खून है, उसने भी खाई है। अब हमें नहीं पता स्कूल में खाई सर, कोई घर में कोई वजह रही होगी जो कोई वजह नहीं है मैम, कोई वजह नहीं है। सर देखिए मैं अभी भी आपके सामने यही कहूंगी, बच्चे परमात्मा करे बच्चा ठीक हो जाए। जैसे ही मुझे पता लगा सर जब का बच्चा दाखिल है, हमारा स्टाफ कल दोपहर को भी गया था, आज सुबह भी गया, क्योंकि सर मैं दिन में कम से कम 10 बार उनको फ़ोन पे हम बात करें, ताया जी को फ़ोन करें, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि बच्चा ICU में, हमें तो मिलने की परमिशन है नहीं है, हम जान सकते हैं, हम तो सिर्फ फैमिली से पूछें। आज सुबह भी उनको फ़ोन किया, 3 बार टीचर गए हैं उनके वहाँ, जो ये कह रहे हैं पर्सन हैं उनसे मिल के आए हैं, वहाँ पर MO भी था, उनसे भी मिले हैं सारे। सर हमने जैसे ही मुझे पता लगा बच्चे ने सल्फास कर, उन्होंने सुबह डॉक्टर ने ये कहा कि सुबह पहले तो जहाँ BP उसका 88 हुआ था, बाद में 70-60 फिर डाउन आ गया। सोडियम और जो है फॉस्फेट वो थोड़ा बड़ा, फॉस्फोरस बड़ा हुआ है, यूरिन बड़ा कम पास हो रहा है। मैम ये चलती क्लास में खाई उसने? सर हमें कुछ नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता। आप अगर ये इतना पता होता तो मेरे को आप देखिए सर, जैसे हमें बच्चे ने एक चीज खाता है, वो हम भी इसी स्कूल में सर, पढ़े हैं, क्लास में बच्चे कोई चीज खाता है तो मैडम को पता होता है, वो पढ़ा रही होती है, क्या टीचर क्लास में काम, बोलते हैं? टीचर देखिए रीड कर रही है, बुक से काम करा रही है। अगर बच्चा हाथ में कोई पकड़ के मुंह सा कुछ खाने का कोई तरीका नहीं होता ना। किसने बताया है कि उसने स्टिंग के साथ पी है? स्ट्रिंग कौन किसके साथ पी? अभी मैं आपको कॉल करवाता हूँ सर। बेटा मेरी बात सुनो, लोग बातें करते रहेंगे, हमारी तरफ से मैंने ऐसा कुछ, मुझे तो सल्फास का भी नहीं पता, आपने आके मुझे बोला, मुझे तो वो भी नहीं पता था। उसके इमीडिएटली बाद आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए सर हम तो प्रेयर्स कर, जैसे कल मुझे पता लगा उसके बाद भी हमने पूरे स्कूल में, मैंने खुद माइक पे महामृत्युंजय का पाठ किया 7 बार, सारे बच्चों का घर जा करना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पाठ में बड़ी ताकत है, बच्चा ठीक हो सकता है। मैंने रात को भी मोबाइल में यही सबको मैसेज डाला टीचर्स को। कितने बच्चे इस वक्त आपके? सर हमारे पास 750 750। अब
जो बाकी परिवार है वो क्या सोचेंगे भी एक बच्चा ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे कई बार कुछ भी हो जाए तो आप सर बोलेंगे देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये कहूँगी, परमात्मा ना करे बच्चे को कुछ हो। हमारे परिवार में भी मेंबर्स हैं, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। सवाल है सर, इतनी कंडीशन खराब हुई आपने एम्बुलेंस भी नहीं मंगवाई। सर हमें एक्चुअली उस टाइम बच्चे ने कहा कि मैंने कुछ खाया नहीं, वॉमिटिंग आई बच्चे को। हम तो जनरली यही लेते हैं ना कि बच्चे ने खाया नहीं, हमें थोड़ा ना पता था क्या हुआ। हमने तो उसी वक्त पेरेंट्स को इमीडिएटली कॉल कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी नर्स को पूछा कि आपने कुछ खिलाया, वो कहते नहीं हम खिला नहीं सकते क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस है। ठीक है ਮਸਲਾ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ? ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਡਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਬਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਜੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਣੇ ਦੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। मैं मोनिका खोखर एज ए प्रिंसिपल बचपन प्ले स्कूल अजनाला के अंदर काम कर रही हूँ। हमारा स्कूल बचपन प्ले स्कूल अपोजिट राधा स्वामी सत्संग घर नियर GRD कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास है। हमारी फ्रेंचाइजी है इधर बचपन स्कूल अजनाला के अंदर। मेन हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में स्थित है। हमारी 1200 से ज़्यादा ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम कर रही है। इनकी कुछ ब्रांचेज फॉरेन में भी स्थित है। हमारी स्टडी जो करवाते हैं हम बच्चों को प्ले वे मेथड से करवाते हैं। यहाँ पर बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करवाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट रूम भी बनाए गए हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, डाइनिंग रूम, डॉल हाउस, किचन एरिया और साथ साथ एवीए रूम, ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, जहाँ पर बच्चों को डिजिटल मेथड से स्टडी करवाई जाती है। हम बच्चों को स्पीको पेन भी प्रोवाइड करते हैं। स्पीको पेन सेल्फ ट्यूटर है जो घर जाके बच्चों को हेल्प करता है। जो स्टडी यहाँ टीचर्स करवा रहे हैं सेम स्टडी आप बुक्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्पीको पेन कर सकते हैं। मेरे पास 100 टाइप ऑफ एक्टिविटी है स्कूल के अंदर, बचपन प्ले स्कूल अजनाला के अंदर, जो डे बाय डे बच्चे अपने एक्टिविटी के ऊपर भी काम करते हैं और इन्जॉयफुली काम करते हैं। मैं जो भी बातें आपको बोल रही हूँ प्लीज़ आप इसको YouTube के ऊपर सर्च कीजिए। और हम ये नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन के लिए ही आइए, आप यहाँ पर सिर्फ एक बार विज़िट के लिए आइए। एड्रेस बचपन प्ले स्कूल अजनाला। थैंक यू। सत श्री अकाल, मैं प्रियंका अरोड़ा, प्रिंसीपल ऑफ एंजल्स पैराडाइज प्री स्कूल अजनाला। आज मैं थोड़ा स्कूल बारे डिस्कस करना चाहांगी। एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल, 2 तरह के स्कूल। एक जिहड़ा ट्रेडिशनल स्कूल जिथे रट्टा लगाया जाता सी, क्रैमिंग बेस काम किया जाता। आजकल के स्कूल इन्ने एडवांस हो चुके हैं जिहड़े कि कॉन्सैप्ट क्लैरिटी उत्ते वर्क करते हैं। तो मेरे स्कूल का मेन फोकस यही है कि असी बच्चों की कॉन्सैप्ट क्लैरिटी करवाइए, ना कि उन्होंने रट्टा लगवाइए। एक गल होर कि जिवें कि छोटे छोटे बच्चे अज एक बन चुका है, एक जिवें कि फैशन बन चुका है कि बच्चों को अमृतसर भेजना। साडा दिल करदा कि इन्ने फॉगी डेज च, इन्नी ठंड च बच्चे अमृतसर भेजने दिल नूं छूंदे है कि यार इन्नी ठंड च भेज रहे हो। मेरा ये दावा है कि मैं वो अमृतसर वाले जो लोग अमृतसर लभदे आ वो मैं अजनाले च करा। ये वास्ते एक बारी एंजल पैराडाइज प्री स्कूल अजनाला जरूर विजिट करो, तानू दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा कि अमृतसर वाली चीज़ तानू
ਇੱਥੇ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪੀਆਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਕਸ਼ਮ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਏਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ AC, ਕੂਲਰ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, LED, ਸਮਾਰਟ TV, ਮਿਕਸੀ, RO, ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਚਿਮਨੀਆਂ, CCTV, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ, ਹਾਇਰ, ਲੋਇਡ, ਹਿਟੈਚੀ, ਓ ਜਨਰਲ, ਗੋਦਰੇਜ ਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 0% ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪੱਖਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਧੂ ਧਰਮਕੰਡਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੈਗੁਆਰ, ਪੈਰੀਵੇਅਰ, ਗ੍ਰਾਫਡੋਰ, ਓਨੀਡਾ, ਸੀਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਜਾਰੀਆ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ਾ, ਕਿਵੋਸ, ਹੌਕ, ਲੈਮਨਸ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਾਰਬਲ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੱਥਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਸ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ PVC ਸ਼ੀਟਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਲੈਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਮੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਚੂਲੇ, ਗੀਜ਼ਰ, ਸਿੰਟੈਕਸ, ਮੌਂਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।